नमस्कार. मी सौ सुनीता दीपक साबळे, एज्युरिक हबची संचालिका तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते. एज्युरिक हब म्हणजेच एज्युकेशनल रिक्वायरमेंट हब. आमच्या ह्या संस्थेचा उद्देश आहे की विद्यार्थी, पालक, शिक्षक व शैक्षणिक संस्था यांच्या गरजा आणि या शैक्षणिक क्षेत्रातील उपलब्ध सुविधा यांचा संबंध प्रस्थापित करणे हा आहे. याचाच एक भाग म्हणजेच आजचा आपला UPSC करिअर मेळा हा आहे. UPSC ही परीक्षा प्रामुख्याने IAS, IPS या पदांसाठी घेतली जाते. मित्रांनो, आजचे युग हे स्पर्धेचे युग आहे. आपण बघतो की अनेक स्पर्धात्मक परीक्षा म्हणजेच कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम या घेतल्या जात असतात. आणि या परीक्षांसंदर्भात विद्यार्थी, पालक यांची संभ्रमित अवस्था असते. या परीक्षा कशा घेतल्या जातात? या परीक्षांचा अभ्यासक्रम कसा असतो? मार्किंग कशा पद्धतीने केली जाते? शैक्षणिक पात्रता किती? या परीक्षांचा नेमका अभ्यास कसा करावा? या आणि यासारखे अनेक प्रश्न आपल्यासमोर उभे राहतात. म्हणूनच या सर्व प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी आज UPSC करिअर मार्गदर्शन घेत आहोत. या मार्गदर्शनासाठी आज आपण श्री अंकुश वानखेडे सरांना आमंत्रित केलेले आहे. सरांचा अल्प परिचय मी करून देते. श्री अंकुश वानखेडे सर हे पेटंट ऑफिसर म्हणून डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज अँड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया येथे कार्यरत आहेत. सरांनी युनायटेड किंगडम येथून एरोस्पेस इंजिनिअरमध्ये MS ची पदवी प्राप्त केलेली आहे. विद्यार्थ्यांना एक विनंती आहे की आपले जे काही प्रश्न असतील ते सरांचं लेक्चर झाल्यानंतर शेवटी आपल्या चॅट बॉक्समध्ये लिहावे किंवा हात वरती करायचा आहे. मी श्री अंकुश वानखेडे सरांना विनंती करते की आपण आपल्या मार्गदर्शनाला सुरुवात करावी. हॅलो हॅलो अंकुश वानखेडे सर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. हा हो, थँक्यू. Thank you. Okay. Good evening, everyone. Thank you very much, ma'am, for giving me an opportunity to guide some of the students available at this particular seminar. In today's lecture, I will be introducing the candidates with the pattern of the UPSC, how UPSC works, what are the eligibility criteria for UPSC, what are the methodologies that you should adopt in clearing this particular examination. So I will give you a brief idea about how the examination works, and whatever questions are there regarding this particular strategy, introduction, and the do's and the don'ts of this particular seminar, we will take it at the end of the lecture. Okay, so let us begin with our today's lecture. As far as civil services examinations are concerned, these civil services examinations are actually conducted every year by the Union's Public Service Commission in 3 stages. Every year, the UPSC conducts an examination for many of the other departments as well. But when it comes to the UPSC civil services, these are the examination, or this is the examination particularly intended to recruit the civil servants who are deputed by the government of India, by the central government, to do a job which is policy execution. Okay, so this particular job requires high level of intellectual ability, high level of understanding of the basic concepts. So when I say high level of understanding, doesn't mean that you should be highly qualified, you should have high quality English or anything like that. What is requirement for this particular examination is the
BTech or BE or basically the graduation. Any graduation is enough for this particular examination. Okay, so when we talk about this particular examination, this is a centrally conducted examination all over India, usually in the month of May. But this year, the examination has been postponed due to the lockdown. In coming month, most probably the examination will be conducted. But ideally speaking, the examination is conducted usually in the month of May. Usually, it is in the last week of May, and it is conducted into the 3 stages. Okay, so as you can see it on the screen, the civil service examination is conducted in 3 stages. First stage is the UPSC Civil Services preliminary examination, which is of objective type. So you will be given questions, and there will be 4 objective type answers, out of which you will have to select one answer. So that's a preliminary examination, which is objective type. This particular civil service preliminary examination is qualifying in nature. This examination is qualifying in nature. This examination is qualifying. Okay, this examination is of qualifying nature. Now when we talk about the qualifying examination, what you have to do in this particular case is just qualify the examination depending upon 2 sets of question papers. One is GS and the second is the qualifying CSAT paper 2, that is aptitude. So in this particular case, the particular examination, the preliminary examination, is usually conducted in the month of May, and the entire examination is conducted centrally all over India on a particular day. Okay, the first stage of this particular examination is the preliminary examination, which is objective type, and this examination needs the basic understanding of the syllabus mentioned in the preliminary examination. The second stage of this particular examination is the civil services mains examination, which is of descriptive type. When we talk about the second stage of the examination, this is mainly the elaboration of the mains answer writing. Okay, and whatever concepts are given in the main syllabus, they are descriptively have to be maintained in the examination. So you will have different set of subjects as specified in the syllabus, and you will have to give that examination after almost 3.5 months from the preliminary examination. Okay, and the third stage is the personal interview. Whatever marks you score in the mains examination, based on that you are qualified for interview. Now it really is important to understand as to how do you qualify for mains examination and how do you qualify for the personal interview as well. So as an example, if 1000 if 1000 vacancies are announced, for example, if 1000 vacancies are announced in preliminary examination, usually 7 to 8 lakh people appear for the examination. Okay, so if at all, for example, 1000 vacancies are announced, 1000 multiplied by 13, it will be 13,000. 13,000 students would be qualified for the mains examination, but usually UPSC qualifies around 20,000 people for the mains examination. And for the personal interview, number of vacancies, that is 1000 multiplied by 3 is equal to 3,000. These 3,000 people will be qualified for the interview stage. Okay, so even though 10 lakh people appear for the examination, in the prelims examination, depending upon the number of vacancies, the vacancies multiplied by 13 would be your number of candidates qualified or shortlisted for the mains examination. And for the interview, number of vacancies multiplied by 3 would be the number of candidates shortlisted for the personal interview. Now when we talk about this kind of setup, this is not a standard formula. UPSC has never given this formula as this is the formula that they recruit people through, but the main intention is just to get an idea. This statistical value is based on the previous experiences of UPSC. So previous examinations में जो trend रहा है UPSC का, उस basis पे ये basically idea लिया जाता है. Okay, so moving on to next. This is the civil services preliminary examination. So now you can see that the first paper is of general studies. This general studies paper carries 200 marks. Okay, and of 2 hours there are 100 questions in this. Okay, so multiplied by 2 marks each.
would be your prelims examination for GS study. CSAT has 80 questions multiplied by 2.5 marks each. Okay, this is a qualifying paper, so you have to score only 33% in CSAT paper 2. So if you score 33%, then only your GS will be examined. So अगर आपका 33% पेपर 2 में स्कोर हो जाता है तो आपका GS का पेपर चेक होता है, and whatever number or score that you score in GS paper 1, based on that आपका qualifying hota hai for the mains examination. So when we talk about the qualification, usually 115 plus is the qualifying marks for the GS paper. This is usually I'm saying. So depending upon every year's type of question papers, qualification का जो cut off mark होता है वो vary करता है. Average अगर आप लेंगे तो average cut off जो है वो 115 marks का है. 115 marks are sufficient enough for you to clear for the prelims examination and get qualified for the mains examination. This is the basic idea. Okay, once you qualify for the preliminary examination, once you are qualified in the preliminary examination, once you qualify in the preliminary examination, the second stage would be the mains examination. But let us look at the syllabus of the GS paper 1, that is paper 1. So in this particular paper, as you can see on the screen, there is a syllabus. Current affairs hoga, history, Indian geography, Indian polity, Indian economy, environment and geography, and general science. This is the syllabus for the prelims examination paper 1. GS paper 1, general studies, जनरल स्टडीज पेपर 1, उसके लिए आपका सिलेबस ये है. सो आपके करंट अफेयर्स रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, वर्ल्ड जियोग्राफी रहेगा, इंडियन पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, और आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी भी उसमें आएगा, एंड जनरल साइंस रहेगा. सो ये सब सब्जेक्ट मैटर आपका सिलेबस रहेगा फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो वंस दिस इज द मेन मैटर जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है. When you start studying for this particular subject matter, there are lot of literature available in the market जहाँ पे आपको ये पूरा literature मिलता है. So this is the paper 1. As far as the paper 2 is concerned, paper 2 is where comprehension, interpersonal skill, so basic aptitude paper जो होता है ये 10th standard के basis का होता है. Based on the 10th standard के basis का aptitude पे आपका ये paper qualifier question paper होता है. इसमें you have to score 33%. 33% is more than sufficient in this particular case. So basically आपको यहाँ पे 66 मार्क्स स्कोर करने हैं. ओके, इसमें 66 मार्क्स अगर आपको स्कोर करते हैं तो आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाता है. फिर आपका जीएस पेपर 1 चेक होता है. ठीक है, सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ इट. ओके, नेक्स्ट स्टेज इज द सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन. यहाँ पे इफ यू सी ऑन द स्क्रीन देयर आर पेपर 7, total 7 papers in this particular case. This is a descriptive type question paper. Mains examination जो आपका होता है वो descriptive type का होता है, and in this particular case in each question paper it carries 250 marks, and paper 1 is GS, paper 1 this is essay, paper 1 is essay, paper 2 is GS. तो उसमें आपका Indian heritage, so basically history and geography is covered in this particular paper GS1. In paper 2, paper 3 that is GS paper 2, उसमें आपका Indian polity, Indian governance ये कवर हो जाता है. पेपर 4 में आपका इकोनॉमिक्स कवर होता है. पेपर 5 में आपका इथिक्स कवर होता है. और ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है ऑप्शनल का. This is one of the most important important subject matter to choose. Why? Because depending upon what subject matter you choose, आपका क्वालिफाइंग मार्क उतना ज्यादा स्कोर होता है. क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर जोन में आपको बहुत ही ज्यादा पढ़ना पड़ता है. बट व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर केस आपका सिलेबस जो होता है वो थोड़ा कंसाइज हो जाता है. सो इफ यू फोकस मोर ऑन टू द ऑप्शनल पेपर तो उस केस में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो. ओके, सो जब आप
मेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू इलैबोरेट करना है। सो बेसिकली आपको पता है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो हमारा प्रीलिम्स का पेपर है, इट इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, ओके, बट व्हेन इट कम्स टू मेंस में आपको 220 क्वेश्चंस होते हैं एक पेपर में, एंड if you miss on to solve even one question per paper, it is possible that your qualifying probability will go below 50%. Okay, so it is extremely important for us that we should solve all the questions judiciously. ठीक है, तो इसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए आपको रेफरेंसेस चाहिए, इसके लिए आपको क्रेडिबल आंसर्स चाहिए, इसके लिए आपका अच्छा लिटरेचर पढ़ा होना चाहिए, इसके लिए अच्छा आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, विच स्पीड आपको लिखना होगा। ये सभी चीजें आपको फोकस करनी पड़ेगी व्हाइल प्रिपेयरिंग योर मेंस एग्जामिनेशन। सो अगर आप ये मेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते हो तो यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, यहाँ पे बेसिकली सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, पेपर 1 2 3 4, उसके बारे में लिखा है, दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स, जहाँ पे आपको 250 मार्क्स ईच का पेपर होता है, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, एथिक्स, इन सब्जेक्ट मैटर पे सबसे ज्यादा आपका फोकस हो। अगर आपका फोकस इस चीज पे अच्छे से होता है तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर यू टू make sure that you qualify the mains examination as well. Okay, or once you qualify the mains examination, it is a personality test. So personality test is basically personal interview जैसा होता है, हालांकि उसको इंटरव्यू नहीं कहा जाता because it is like a personality test, जहाँ पे आपका जो इंटरव्यू जो चीजें हैं ये सभी चीजें ऑलरेडी मेंस में ऑलरेडी हम लोगों ने चेक कर लिया होता है, बट व्हेन इट कम्स टू द पर्सनालिटी टेस्ट, वहां पे सिर्फ आपको जाना जाता है आपकी पर्सनालिटी कैसी है। वो होता है आपका 275 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अक्रॉस द टेबल बैठ के आपके इंटरेस्ट जाने जाते हैं, आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड है वो जाना जाता है, आपने जो मींस एग्जामिनेशन दिया है उसमें किस तरीके से परफॉर्म किया है, ऐसे टाइप क्या था, आपका फील्ड चोजन क्या है, ये सभी चीजें इसमें पूछी जाती है। ओके, एंड वंस यू क्वालिफाई देन यू विल बी रिक्रूटेड फॉर अ रिस्पेक्टिव पोजीशन। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि एग्जाम तो अंडरस्टैंड है, ये जो चीजें मैंने आपको बताई ये सभी चीजें जो है ये आप बुक में पढ़ के भी कर सकते हो, ये बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप यूट्यूब पे जाके टाइप कर देंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी और यूपीएससी सिलेबस, तो आपको बहुत इजीली सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ऑनलाइन ओनली। तो फिर मैं ऐसा नया क्या बोल रहा हूँ, मैं नई चीज आपको ये बता रहा हूँ कि when you are actually planning to appear for UPSC civil services, it depends upon what you are targeting. So basically जब आप कभी भी यूपीएससी के लिए अपेयर करना चाहते हो तो ऑब्वियसली ऑल द कैंडिडेट्स टारगेट टू अपेयर फॉर आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। ये तीन पोजीशंस ऐसी होती है कि जो सिविल सर्विसेज में टॉप मोस्ट पोजीशंस कंसिडर की जाती है, एंड व्हेन यू क्वालिफाई फॉर द टॉप रैंक यू यूजुअली गेट ऑप्टेड फॉर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ये आपके चॉइसेस होते हैं। एक डीएएफ करके आपको भर के देना होता है जिसको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बोला जाता है। ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आप उसमें आपके डिटेल सबमिट करते हो, आपका सर्विस कौन सा, आपका चोजन सर्विस क्या है। तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू आई विल गिव माय चोजन सर्विस एज आईएएस। तो सब मैं प्रायोरिटीज दूंगा। सो अगर मेरा अच्छा रैंक आया तो मुझे आईएएस बनना है, नहीं उसमें अगर नहीं मिला तो मुझे आईएफएस चाहिए, अगर उसमें भी नहीं मिला तो मुझे आईपीएस चाहिए। सो डिपेंडिंग अपॉन योर डीएएफ आपको सर्विसेज अलॉट होती है बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटीज। ठीक है, सो ये चीजें तो बहुत सिंपल है। सिलेबस आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, सिलेबस आप यूट्यूब से भी निकाल सकते हो, बट हाउ टू स्ट्रेटेजाइज कि आप एग्जामिनेशन को कैसे क्वालिफाई करोगे, तो आपको फोकस करना है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे। दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी दैट यू कैन यूटिलाइज। अभी हमें पता है कि जो हमारा मेंस एग्जामिनेशन वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। हमारा पेपर 1 जो था वो एसे का था, वी ऑलरेडी सॉ दैट। ठीक है, एसे के पेपर में आपको 2 एसेज लिखने होते हैं 3 घंटे में। ठीक है, सो एसे इज सच अ सब्जेक्ट कि जहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो टारगेट कीजिए कि आप एसे में 175 स्कोर करोगे। अंडरस्टूड है। फिर जैसे मैंने बताया कि हर पेपर में जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस 3 और जीएस 4 ईच हैज 20 क्वेश्चंस। ओके, अगर हर क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करते हो, टारगेट करते हो कि मुझे उसमें 4 से 5 मार्क्स स्कोर करने हैं एवरेज, 10 मार्क का नहीं करना है, 15 मार्क नहीं करने स्कोर, मुझे 4 से 5 एवरेज स्कोर करने हैं। अगर आप एवरेज पे टारगेट करोगे, फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन के लिए हम लोग 5 बोल रहे हैं, सो यू विल स्कोर 100 इन दिस 4 पेपर, सो दैट कम्स आउट टू बी 400। ओके,
ये 400 हो गए, आपके 175 ऐसे के हो गए, करेक्ट। और जो ये क्वेश्चन पेपर ऑप्शनल का है, ऑप्शनल जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका ऑप्शनल पेपर आप कैसे सिलेक्ट करते हो इस पे बहुत ही ज्यादा चीजें निर्भर करती है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप जब आपका ऑप्शनल सिलेक्ट करेंगे तो जरा सोच विचार करके करें, जो ऑप्शनल आपको पसंद आता है, जिसमें आप अच्छा सा इलेबोरेशन कर सकते हो, जिसका लिटरेचर अवेलेबल है, ऑल दैट सॉर्ट्स। वंस यू गेट दैट ऑप्शनल, आपको टारगेट करना पड़ेगा आउट ऑफ 500 आप उसमें 350 एटलीस्ट स्कोर करोगे। ये स्कोर होता है। सो से यू स्कोर 350 इन दैट। आपका अगर आप टोटल स्कोर करोगे तो वो आता है अराउंड 925। ठीक है, ये सिर्फ आपका 925 जो है ये आपका सिर्फ मेंस का स्कोर हुआ। और आपका 275 का जो इंटरव्यू का जो स्कोर होता है आउट ऑफ 275, अगर आप इंटरव्यू अपीयर भी कर गए अच्छे, अगर आपने आंसर दे दिया, आपको 175 तो मिल ही जाएगा। आपका स्कोर हो रहा है 1100। ठीक है, दिस इज द एवरेज स्ट्रेटेजी दैट यू आर अडॉप्टिंग, राइट। अगर आप इसी स्ट्रेटेजी को सीरियसली प्रैक्टिस करते हो और यही पैटर्न अगर फॉलो करते हो तो यू विल रियलाइज दैट यू वुड स्कोर अराउंड 1100 मार्क्स विद एन एवरेज स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो अगर आप 2012 जब सिलेबस चेंज हो गया उसके बाद से अभी तक जितने भी रिजल्ट्स आए, ठीक है, उसमें से अगर आप देखोगे तो किस तरीके के रिजल्ट्स आए हुए हैं, अगर आपकी स्क्रीन आप जूम कर सकते हो तो जूम कर लीजिए। ये अलग अलग ईयर के लोगों के मैंने स्कोर मार्क्स दिए, फाइनल कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए उनके दिए हैं। दे हैव एवरेज स्कोर बिटवीन 900 टू 1200, 900 से 1200 तक का रेंज होता है। और आपका स्कोर आ रहा है एवरेज स्ट्रेटेजी से 1100। अगर आप इस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करेंगे, देखिए इनको 940 मिले हैं, इनको 1120 मिले हैं। शी वॉज द टॉपर, नंदिनी के आर वॉज द टॉपर। ठीक है, उनको 1200 मिले हैं, इनको देखिए 1052, 993। सो 900 से लेकर 1200 का रेंज है। आपका स्कोर अगर इस रेंज में आता है तो आपका क्वालिफिकेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा, प्रोवाइडेड यू फॉलो द स्ट्रैटेजी जुडिशियसली। अगर आप आपकी स्ट्रैटेजी जुडिशियसली फॉलो करेंगे तो आई कैन एश्योर यू कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो सकते हैं। इट इज जस्ट रिक्वायर्ड दैट यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन टू द स्ट्रैटेजी। ठीक है, वंस यू qualify this examination, you are given a particular position, IAS IPS IFS जो भी आपको मिलता है, बेस्ड ऑन दैट आपको लबासना जो होता है, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। और उस ट्रेनिंग में आपको ऑन जॉब एक 3 महीने की वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। उस 3 महीने के ट्रेनिंग में आपको काफी सारे स्ट्रैटेजिक कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें पढ़ाई जाती है। एंड दिस इज हाउ यू एक्चुअली नो द एग्जामिनेशन। ठीक है, सो जब मैंने इसके बारे में आपको बताया कि हाउ थिंग्स रियली वर्क एज फार एज यूपीएससी एग्जामिनेशन, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको, ये तो सभी करते हैं, ये आपको जो चीजें मैंने बताई ये सभी चीजें आपको वैसे ऑनलाइन भी मिल सकती है। इंपॉर्टेंट बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अनलेस अनलेस आप तरीके से इन चीजों को स्ट्रैटेजाइज करो, आपके सिलेबस को स्ट्रैटेजाइज करो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आपको समझ में भी आए कि एग्जैक्टली सिलेबस क्या। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट है। ओके, ये वास्ट सिलेबस जो है उसको अगर आप प्रॉपर तरीके से करना है तो 100 बुक्स पढ़ने से अच्छा है एक बुक 100 बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। एनसीईआरटीज, रेफरेंस बुक, ये सभी की जो बुक लिस्ट होती है उसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करो। आई कैन एश्योर यू कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करेंगे। बट इट इज जस्ट नीडेड फॉर यू दैट यू विल हैव टू फोकस ऑन टू प्रॉपर स्ट्रैटेजी। अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी की तरफ नहीं फोकस करोगे तो काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि मम्मी ने बोला इसलिए कर रहे हैं, पापा ने बोला इसलिए कर रहे हैं, दोस्त कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। बट अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजाइज करते हैं तो आई कैन एश्योर यू कि आपका सिविल सर्विसेज जो है वो पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। सो मेक श्योर कीजिए कि जब आप इसको स्ट्रैटेजाइज करते हैं तो अच्छी तरीके से आप सिलेबस पढ़ें। सबसे पहले सिलेबस पढ़ लीजिए। और जब आप ये सिलेबस पढ़ते हो तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपको सिलेबस की हर चीज अच्छे तरीके से समझ रही है। जब आपको सिलेबस अच्छी तरीके से समझ जाता है तो यू विल नो व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड, डूज और डोंट्स उसके क्या होते हैं। करंट अफेयर्स इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट की जो आपको करना होता है।
So the Hindu newspaper is usually referred by most of the candidates. न्यूज़पेपर रेफर कीजिए, डेली बेसिस पे एडिटोरियल एंड ओपिनियन पढ़िए. ये बेसिक चीजें हैं. और जैसे 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 आप आगे बढ़ोगे, डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, एटलीस्ट 1 essay पर वीक लिखना, ये बेसिक चीजें हैं. तो आप अगर इन चीजों को करोगे तो आई कैन एश्योर यू कि आपका क्वालिफिकेशन इन वेरी मच द फर्स्ट अटेम्प्ट ही हो जाएगा. ओके, सो दिस इज ऑल आई वांटेड टू एक्सप्लेन अबाउट द यूपीएससी सिविल सर्विसेज. ठीक है, सो अगर किसी को इसके बारे में अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे पूछ सकते हो. You can post your messages in the chat box and I will try to address all the queries for you. Okay? Thank you. हॅलो, Hello. विद्यार्थ्यांना काही प्रश्न विचारायचे असतील तर विचारू शकतात चॅट बॉक्स. Good evening, Dia. Is there any question? What book you should doubts? NCERT books are there. 6th स्टैंडर्ड से लेकर 11th स्टैंडर्ड तक की NCERT आपको रेफर करनी पड़ेगी. फॉर हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी का 11th स्टैंडर्ड का बुक इज मोर देन सफिशिएंट. Other than that, you have to refer NCERT books from 6th standard to 12th standard for all the sections: social sciences, economics, and equality. और आपका जो करंट आपका जो हिस्ट्री होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो होता है, उसके लिए आपको कंटेम्पररी वर्ल्ड जो 12th 11th और 12th स्टैंडर्ड का बुक है वो भी पढ़ना होगा. सो बेसिकली NCERTs and the reference books that you will have to refer, that is more than sufficient. It's not necessary to go through all. It's not necessary to go through all 6 students. See, the thing is, it is okay to go through all the NCERTs. To be very frank, it is ideal to generate lot of fodder material in mind, because जब आप मेंस में एग्जामिनेशन लिखते हो तो आपके पास मैक्सिमम फॉर्डर मटेरियल होना चाहिए. सो मेक श्योर कि आप 6 से 12th स्टैंडर्ड की सभी NCERTs पढ़े, एटलीस्ट 1-2 बार तो पढ़ ही ले. उसके बाद अगर आपने उसको 6 to 10th को स्किप भी कर दिया और 11th और 12th को फोकस किया फिर भी चल जाएगा, बट एटलीस्ट एक बार तो उसको पढ़ ही लीजिए 6 to 12th स्टैंडर्ड. Dia is asking, is it true that if an optional which is chosen by most of the candidates, the scoring optional subject becomes difficult? See, Dia, ऐसा नहीं है. होता कैसा है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स. नंबर 1, आपकी पसंद होनी चाहिए. अब पसंद हो ना हो डिफरेंट पार्ट. आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो स्कोरिंग सब्जेक्ट होना चाहिए. ओके, सो सब्जेक्ट स्कोरिंग होना चाहिए, सिलेबस कंसाइज होना होगा तो बेहतर होगा. उसके अलावा लिटरेचर अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है इन द मीडियम दैट यू आर अपियरिंग द एग्जाम फॉर, और सिलेबस कंसाइज होना चाहिए. ये अगर आप चीजों की तरफ ध्यान दोगे तो आप अच्छे से स्कोर करोगे. अब काफी सारे लोग हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं, सोशियोलॉजी लेते हैं, ये कॉमन सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग है. अब होता कैसा है, अगर आपने जियोग्राफी सब्जेक्ट लिया, जियोग्राफी इज अ वेरी फैक्चुअल सब्जेक्ट. अगर आपको द्रास रीजन कहाँ है ये पता नहीं है तो आप कहीं कुछ लिख ही नहीं पाओगे. मगर अगर कोई ओपिनियनेटेड सब्जेक्ट है तो उस पर एटलीस्ट आप कुछ एक्सप्रेस तो कर पाओगे. इसीलिए ऐसा सब्जेक्ट मैटर लेना चाहिए जिसमें आप आपका ओपिनियन दे सको. तो एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और सच आर द सब्जेक्ट जिसका सिलेबस भी कंसाइज है, लिटरेचर भी अवेलेबल है, और देर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग इन इट. अगर आप आपका एक्सप्लेनेशन में क्रेडिबल सपोर्ट अगर आपकी थ्योरी को देते हो तो यू आर राइट, आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे. इसीलिए लोग ऐसे सब्जेक्ट्स भी लेते हैं. ठीक है,
So depending upon that you should take. So it's not necessary कि बहुत ज्यादा अगर सब लोग उसको लेंगे तो स्कोर, see you will need only one post, आपको सिर्फ एक सीट की जरूरत है, तो बाकी लोगों के बारे में भूल जाइए, सिर्फ उस आपको 350 स्कोर करना है ऐसा ध्यान में रखिए, एंड डू द नीडफुल, बाकी लोगों को कितना भी स्कोर कर ले लीजिए, अगर आप 350 स्कोर करेंगे एक सब्जेक्ट मैटर में तो यू विल डू गुड एज फार एज ऑप्शनल इज कंसर्न. ओके, रिक्वेस्ट टू आस्क योर डाउट्स. ओके सर, फॉर द बिगिनर्स विद व्हाट स्ट्रेटजी दे शुड स्टार्ट. एनसीईआरटी से शुरुआत कर दीजिए, 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक का जो एनसीईआरटी है उससे आपको चालू करना है. Okay, you start with 6th standard से लेकर 12th standard के NCERT. That is the basic thing that you should do. World map, we should spend more time on it. See, the thing is, दो तरीके के मैप होते हैं. एक वर्ल्ड मैप होते हैं, एक होता है फिजिकल मैप, दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप. जब आप जियोग्राफी पढ़ते हो तो उसको हैंडी रख के ही उसको पढ़ा कीजिए, सो दैट आपको माइंड में मैप मत क्रिएट कीजिए, एक्चुअल फिजिकल मैप देखिए, उससे आपकी पढ़ाई अच्छी होती है. Yes, it helps a lot when you study with respect to the map. Okay, so physical और political दोनों मैप आप साथ में रखिए. Okay, is economics is good for options? It really depends, Ariba, because अगर आपका economics में interest है तो it's good subject. अगर आपका किसी दूसरे सब्जेक्ट में, so it depends upon your interest only. So there are 48 optional subjects. तो आप एटलीस्ट शुरुआती टाइम में उस सब्जेक्ट्स को देखिए, उनका सिलेबस पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट अच्छा कौन सा है. सो डोंट बी प्रेजुडिस्ड अबाउट इट. पहले एनसीईआरटी पढ़िए, तो फिर एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते शायद आपको लग जाएगा कि नहीं हिस्ट्री तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो शायद आप हिस्ट्री ले लो. नहीं, जियोग्राफी तो बहुत अच्छा है, तो शायद आप जियोग्राफी ले लो. तो डिपेंड करेगा. ठीक है, तो पहले एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद उसके बारे में डिसाइड कीजिए. Which subject we should start with for beginners? Ideally, यशस्वी, you should start with Indian polity, because Indian polity is such a subject कि जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो मेक श्योर कीजिए कि अगर आप इस तरीके के सब्जेक्ट मैटर पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि पॉलिटी आपकी किस तरीके की है. ठीक है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि अगर ये पॉलिटी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में आएगी तो इट विल हेल्प यू अ लॉट. So start with the subject matter like the Indian polity. It is easier that way, but there is no standard formula कि आपने Indian polity से चालू करना चाहिए. Any subject you can pick up. Just pick up the NCERTs and start studying. 6th standard से लेकर 12th standard तक. Yes, Dia. My contact number is given on the slide, so you can obviously contact me if you need any help, further help regarding this studies or any references regarding your answer NCERTs or reference books. So किसी तरीके की अगर help लगती है as far as the preparation is concerned, so you can contact me on the number given. That should not be an issue. Okay, Ariba. इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जब ये प्रिपरेशन चालू करेंगे तो डेडिकेटिवली प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर 2021. दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर 2021, बिकॉज यूपीएससी का एक टाइमलाइन होता है. यू कैन नॉट जंप ऑन टाइमलाइन. May, June is the right time to join for the preparation. Once you start preparation, आपका ये जो प्रिपरेशन होगा वो राइट डायरेक्शन में जाएगा, आपको इनफ टाइम मिलेगा इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए. Mr. Saurabh, please unmute your mic and ask question. मराठी मीडियम वाला कसे प्रिपरेशन करू शकणार इंग्लिश मध्ये? मराठी सौरभ, मराठी मीडियमचं लिटरेचर कंपॅरेटिव्हली कमी आहे, बट सियाक इन्स्टिट्यूट जे आहे सीएसटी ला, तुम्ही तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला बरंचसं लिटरेचर मिळू शकतं मराठीमध्ये. देअर इज अ ड्रॉबॅक की मराठीचं लिटरेचर कमी आहे, बट देअर आर सर्टन इन्स्टिट्यूट्स की जे तुम्हाला मराठी लिटरेचरचे बुकलेट्स वगैरे देतात, सिलेबस वगैरे देतात, पूर्ण लिटरेचर देऊ शकतात. तर यू शुड कॉन्टॅक्ट सच इन्स्टिट्यूशन्स की जे तुम्हाला मराठी लिटरेचर देऊ शकतील. सो दॅट विल बी द ओनली ऑप्शन, कारण मराठीचं लिटरेचर ऍक्च्युली कमी आहे. इंग्लिशचं सगळ्यात जास्त अवेलेबल, इंग्लिश आणि हिंदी बोथ आर अवेलेबल, मराठीचं कंपॅरेटिव्हली फार कमी आहे. For language, how to study for English literature? Language paper, Yashasvi, take it easy,
आप फ्री होने के बाद उसके बारे में चालू कर दीजिए, बिकॉज लैंग्वेज पेपर इज क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। सो उसके लिए जो लिटरेचर का पार्ट, उसके लिए स्पेसिफिक बुकलेट्स आते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इसके बुकलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर देते हैं। यू कैन रेफर दोज बुकलेट्स, हार्डली आपको 15 to 20 डेज लगेंगे, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर के हैं। तो यू शुड थिंक अबाउट दिस इंग्लिश लिटरेचर एंड वन रीजनल लैंग्वेज somewhere after prelims. Maybe you can give 15 to 20 days for both the subjects and it would be easy for you to qualify that way. Okay, but अभी से इंग्लिश लिटरेचर के लिए इतना मत सोचिए। अभी एनसीईआरटीज और रेफरेंस बुक जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है उस पे फोकस आपको ज्यादा करना पड़ेगा। How to make notes for current affairs? To be very frank, करंट अफेयर्स के लिए होता क्या है कि व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि Hello. Ankush sir, please unmute your mic. Hello, Ankush sir. Okay, sorry. Ankush sir, please unmute your mic. Yeah, right. Now So, it's audible. Yeah, sorry. So when it comes to the notes making, as far as the current affairs is concerned, make sure, can you please share some can for example notes making में कैसा है कि make sure कीजिए कि जैसे ही आप लिखते हो अलग अलग सब्जेक्ट मैटर के लिए, सो पॉलिटी के लिए अलग बुकलेट कीजिए, इकोनॉमी के लिए अलग बुकलेट कीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुकलेट कीजिए, और जब आप उसके बारे में पढ़ते हो तो उसको उस इंफॉर्मेशन में लिखिए। और इंफॉर्मेशन, डोंट क्रिएट अ न्यू बुक आउट ऑफ अ बुक, तो बहुत ही शॉर्ट में लिखिए, बुलेट पॉइंट्स में लिखिए। मेक श्योर कीजिए कि आप उसकी डायग्राम निकालते, एक माइंड मैप क्रिएट करते हैं, बबल डायग्राम निकाले, जिसकी वजह से आपको वो याद रहेगा। दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर। और जब आप इस स्टैटिक नोट्स करते हो, करंट अफेयर्स इज अ डायनामिक सब्जेक्ट कि जो डेली बेसिस पे चेंज होते रहता है, तो करंट अफेयर्स के नोट्स अलग बनाइए, और स्टैटिक नोट्स मतलब आप जो रेफरेंस बुक और एनसीईआरटीज बनाते हो उसके लिए अलग नोट्स बनाइए। और ये जो डायनामिक्स नोट्स होते हैं उसको हमेशा अपडेट करते रहिए। उसके लिए काफी सारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, ऐप आते हैं, जैसे एवरनोट, आप उस ऐप को भी रेफर कर सकते हैं और वहां पे आपका स्ट्रेटेजाइज हो सकता है। सो कॉपी पेस्ट करके आप आपका नोट्स क्रिएट कर सकते हैं फॉर करंट अफेयर्स। ओके, यशस्वी, yes sir, can you please share some more light on geography optional? Yeah, I did not take geography as an optional. I was having a PSIR, public political science and international relations. So geography एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, सिलेबस कंसाइज है, बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल है, इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिकली ध्यान में रखनी पड़ती है। इफ यू आर एबल टू recite that, if you like the subject matter, then definitely go ahead with it. अगर आपको इसके बारे में आइडिया चाहिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है उसको रेफर कीजिए, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देखिए, उससे आपको आइडिया आ सकती है कि ज्योग्राफी में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उस हिसाब से आप उसका सिलेक्शन कीजिए। तो जब आप किसी भी ऑप्शनल का सिलेक्शन करेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रेफर करके उसका सिलेक्शन कीजिए। ओके सर, क्या हिंदी मीडियम वाला प्रिपरेशन नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकता है, व्हाई नॉट कोशिका। हिंदी वाले काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आपको हिंदी मीडियम का लिटरेचर भी मिल जाता है, डेफिनेटली यू कैन प्रिपेयर। दो mediums are very prominently used for UPSC civil services. One is the English, another is Hindi. So हिंदी का भी population बहुत ज्यादा है जो हिंदी मीडियम में देता है। So refer to the booklets, syllabus हिंदी में होता है, पेपर्स भी हिंदी में होते हैं। हालांकि हर क्वेश्चन पेपर दो लैंग्वेज में दिया जाता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। So you can do that. Of course you can do it. Okay. सर क्या हो गया? ठीक है सर, इज देयर एनी नेगेटिव मार्क? ऑफ कोर्स देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, एज आई टोल्ड यू कि प्रीलिम्स में आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, मेंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। प्रीलिम्स में आपका नेगेटिव मार्किंग होता है 0.66 वुड बी द नेगेटिव मार्क विद अ रॉन्ग आंसर। 0.66 मार्क्स आपके जाएंगे, तो मेक श्योर कीजिए कि आपको प्रीलिम्स में भी उसका, ये बेसिक चीजें हैं, ये आप जब सिलेबस पढ़ लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है स्ट्रैटेजी कैसे करना है, क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। ओके, नेगेटिव मार्किंग बट होता है, यस।
हाउ मच इज कट ऑफ मार्क, ये तो हर साल चेंज होता है कट ऑफ मार्क, सो देयर इज नो स्टैंडर्ड कट ऑफ मार्क, हर साल जितना कट ऑफ कम या ज्यादा होते रहता है। आइडियली स्टैंडर्ड कट ऑफ मार्क जो है 115 का है इन प्रीलिम्स, एंड मेंस में अराउंड 900 मार्क्स का रहता है यूजुअली, ठीक है, बट हमेशा नहीं रहता है, ये चेंज होते रहता है। हॅलो ऋतिका, तू प्रश्न विचारू शकतेस? हॅलो सर, ऋतिका पगारे प्रश्न विचारते. हाँ, हॅलो ऋतिका. आंसर कितने वर्ड्स में लिखे, 250 वर्ड्स का एक दिया जाता है टारगेट, 250 वर्ड्स में लिखना होता है, बट अगर आप उसको एवरेज कर दोगे 175 टू 200 वर्ड्स तक तो इट इज अ गुड आइडिया। क्यों? क्योंकि आपको पूरे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 175 वर्ड्स टू 200 वर्ड्स तक आप आपका आंसर लिख सकते हैं। कैन वी टेक मैथमेटिक्स? यस, देयर आर मेनी पीपल हु टेक मैथमेटिक्स एज एन ऑप्शनल। अगर आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता है, डू वन थिंग, आप प्रीवियस ईयर्स का मैथमेटिक्स रेफर कीजिए क्वेश्चन पेपर। मेरा एक दोस्त ही है, ही इज प्रिपेयरिंग थ्रू मैथमेटिक्स, वन ऑफ माय कलीग ओनली, सो ही इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम मैथमेटिक्स। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो भी मैथमेटिक्स से प्रिपेयर कर रहे हैं। सो देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एंथ्रोपोलॉजी, सो काफी सारे लोग ऐसे हैं कि जो कर रहे हैं इससे थ्रू मैथमेटिक्स लेकर भी ऑप्शनल प्रिपेयर। On making timetable for UPSC study, sir, UPSC timetable, what you, there is no standard timetable. What you will have to do is you will have to spend at least 5 to 6 hours per day average. So ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज कर लिया, कल छोड़ दिया, फिर 2 दिन बाद पढ़ाई कर ली ना। You will have to consistently prepare. I can tell you one thing, that there are people who go to Delhi जाते हैं, 2 से 3 लाख क्लास की फीस भरते हैं और वहां पे रहने का खर्चा, सो ओवरऑल 5 लाख खर्च करते फिर भी क्वालिफाई नहीं होते, ठीक है। एंड देयर आर पीपल की जो गांव खेड़े में रहते हैं, कोई क्लासेस नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, मगर फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं। ये रीजन उसके पीछे है क्योंकि कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन आर द कीज। आपको कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना होगा, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपेयर करना होगा, तो आप क्वालिफाई करोगे। देयर इज नो स्टैंडर्ड टाइम टेबल फॉर यूपीएससी। अगर आप डेली 4 से 5 घंटे भी देते हो तो यू शुड बी एबल टू qualify in the first attempt. क्या हम दिल्ली एग्जाम, हम एग्जाम दिल्ली एंड पुणे में दे सकते? ना, यू कैन गिव एग्जाम एनीवेयर, बट पीपल, दिल्ली में कोचिंग क्लासेस बहुत फेमस है ना, इसलिए दिल्ली का एग्जांपल दिया। यू कैन गिव इट एनीवेयर, ऑल डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस, जो भी डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस है वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया, जो भी डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस है। सर, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो क्या ऐसे इंग्लिश में आता है? नहीं, ऐसे हिंदी में भी होता है। अगर आप हिंदी मीडियम में देखेंगे तो हिंदी में ही ऐसे लिखेंगे। हिंदी मीडियम अगर होगा तो आपका पूरा जो पेपर होगा हिंदी में होगा, सिर्फ आपको एक इंग्लिश का पेपर होगा, वो इंग्लिश लिटरेचर जो क्वालिफाइंग पेपर है, दैट इज ऑल। बाकी सभी चीजें आपकी हिंदी में होगी, इवन ऐसे। सर, क्या हिंदी में पर्सनालिटी टेस्ट दे सकते हैं इफ योर प्रीलिम्स एंड मेंस आर इंग्लिश? यस, व्हेन यू अपीयर फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, वो आपको पूछते हैं कि आप कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी, टेल देम। इफ यू आर कंफर्टेबल इन मराठी, टेल देम कि मला मराठी द्यायची आहे। You are comfortable. See, the thing is, personality test is knowing each other. Important part is आपका कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होना। तो लैंग्वेज इज नॉट अ बॉदरेशन। आप हिंदी में दे सकते हो, मराठी में दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, कोई भी चलता है। इवन दो योर मीडियम ऑफ एग्जाम वाज इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज चलता है। Can people crack this exam without? Of course they can, यशस्वी। Of course, होता क्या है, सिर्फ you need proper guidance। होता क्या है कि when you start preparation, हेवाया प्रिपरेशन जाता है, तो इसके लिए सिर्फ आपको गाइडेंस की जरूरत होती है। सो गाइडेंस, व्हेन इट कम्स टू गाइडेंस, ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट गाइडेंस, गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। जैसे मेरे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं लिया था मगर क्वालिफाई कर लिया है। सो गाइडेंस आपको होने की जरूरत है। जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो आपके आंसर चेक करना,
कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ये सब चीजें जरूरी है। सो काफी सारे लोग ऐसे हैं जो विदाउट प्रिपरेशन भी क्वालिफाई किए हैं। सो इट्स नॉट नेसेसरी। कुछ क्या आपको लगता है 6वीं से लेकर 12वीं तक के बुक्स पढ़ने के लिए आपको कोचिंग की जरूरत है? क्या आपको लगता है हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए? हिस्ट्री इज लाइक अ स्टोरी टेलिंग बुक, उसको पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा। सिर्फ इतनी चीज है कि आपको स्टैटिक हिस्ट्री से करंट अफेयर से जोड़ना, इकोनॉमिक टॉपिक्स को करंट अफेयर से जोड़ना। जब प्रधानमंत्री इकोनॉमिक पैकेज जब अनाउंस करते हैं, आत्मनिर्भर का मतलब क्या है, क्यों आत्मनिर्भर अभी बोला, व्हाट इज द रीजन, चाइना में और इंडिया में अभी जो लद्दाख में इश्यूज चल रहे हैं वो क्या है, उसका मीनिंग एक्चुअली क्या है, व्हाई चाइना इज डूइंग इट नाउ, ये सब चीजें अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इसका एनालिसिस करने के लिए आपको थोड़ी गाइडेंस की जरूरत होती है, अदरवाइज यू कैन डू इट विदाउट कोचिंग आल्सो, दैट इज डेफिनेटली okay. Sir, UPSC is only for IAS or IPS only? No. There are 16 services: IAS, IPS, IFS, IRS, IRTS, account services, ordinance services, post office services, बहुत रेलवे सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज है। अगर आप सिलेबस पढ़ोगे ना तो पहले ही पेज पे दिया रहता है कि कौन सी सर्विसेज होती है। टॉप 3 पोस्ट होती है IAS, IPS और IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेन सर्विसेज, और एक रेवेन्यू सर्विस भी होता है जो टॉप नॉच कंसिडर किया जाता है। ठीक है, सो दीज आर ऑल देयर। यशस्वी, व्हाट आर द चांसेस ऑफ क्लियरिंग पर्सनालिटी टेस्ट? You don't need to rely on to personality test. Why? Because आपके हाथ में मेंस है, क्योंकि मेंस अच्छे से लिखोगे तो आप 900 मार्क अगर क्वालिफाई कर लिया ना, आप पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाओगे। इंटरव्यू के बारे में मत सोचो, इंटरव्यू में जाके बस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करके आओ, एटलीस्ट आपको 175 तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, अगर आपने मेंस क्वालिफाई किया वहां पे जाके कुछ तो बोलोगे तो आपको मिल ही जाएगा। तो okay, can everybody hear me? Actually, there is a power cut, so so if you guys have any problem, obviously you can contact me on the number given. I will guide you through. That is not an issue at all. आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है, even यशस्वी, the kind of questions you are asking, I can understand you are thinking of it seriously. Definitely, आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बाकी सभी लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेक श्योर कि आप स्ट्रेटेजी पे ज्यादा फोकस करते हो, उस तरीके से फोकस कीजिए, प्रॉपर सिलेबस को स्टडी कीजिए और तरीके से आप फॉलो कीजिए स्ट्रेटेजी को। यू गाइज विल डू गुड। और मेरी तरफ से अगर कोई भी हेल्प लगती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर गिवन, आई विल बी एबल टू हेल्प यू थ्रू। हेलो, और किसी का क्वेश्चन पूछना है सर? पूछ लीजिए, ये अच्छा मौका है। I just need help on how to get started with the preparation. I mean, that's what I'm telling you. You will have to start with the NCERTs, 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक का NCERT स्ट्रेटेजी कीजिए। ठीक है, और धीरे धीरे अगर आप वो करेंगे, फिर उसके बाद रेफरेंस बुक्स है, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स है। व्हाट आई विल डू, आई विल प्रोवाइड, आई मीन, आई डोंट नो हाउ टू गिव इट टू यू। आई हैव द लिस्ट ऑफ बुक्स दैट यू शुड रेफर, so I will just forward it to sir, maybe he can forward it to all you guys, maybe if that is needed, so that ways you will get the list of the books as well. Okay, so I have some literature that will be helpful for you guys, so मैं ये sir के साथ share कर दूंगा, so he can share it with you guys. Is it necessary to make notes? Yes, extremely important. You should always make notes. उससे होता यह है कि आपके परमानेंट मेमोरी में चीजें जाती है और आपकी लिखी हुई चीजें आपको अच्छे से याद रहती है। सो मेक श्योर कीजिए, नोट्स जरूर बनाइए। Hello, any more question?
Yashasvi. Welcome, Yashasvi. Welcome all you guys. If there is no more questions, can we conclude session? How can we improve a particular language? You will have to practice on the language. That is the thing we can do, Saurabh. So depending upon what language you are talking about, you will have to just practice with it. I mean, follow the literature, follow the practice. You'll have to do that only. That is how you can improve particular language. As far as if you're talking about English बात कीजिए. Even though म्हणजे तुटक फुटक असली तरी चालेल, बोलणं शिका. न्यूजपेपर वाचताना मोठ्याने वाचा. आपली जीभ वळत नाही इंग्लिश बोलताना, ती वळायची सवय लागते. ठीक आहे. न्यूजपेपर वाचताना मोठ्याने वाचा. शक्यतोवर इंग्लिश मध्ये बोला. These are the only methodologies that you should use to improve a particular language, whatever language that may be. हॅलो, आणखी कोणाचे प्रश्न आहेत का? प्रश्न नसतील तर मग आपल्याला सेशन संपवायचं. हॅलो. Okay, if there is no question, we will conclude the session. Thank you very much, ma'am, for giving me this opportunity to guide through some of the students. As I've already said, if there is anything that I can help you with, the contact number is given. You can contact me on the number, or I will forward the literature to sir. He will help you through. Okay, so thank you very much, and keep washing your hands. Don't go out unnecessarily. Okay, stay safe. Thank you. Have a good evening. थँक्यू सर. Thank you. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला सरांचं मार्गदर्शन अतिशय फायदेशीर ठरेल असं मला वाटतं. तर सरांनी आपला अमूल्य असा वेळ आपल्याला दिला आणि त्यात तुमच्या प्रश्नांचं समाधान केलंय सरांनी बऱ्याचपैकी. तर सरांनी यामध्ये आपला वेळ दिला आणि तुम्हाला चांगलं मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते. आणि त्याचबरोबर रिलायबल अकॅडमीचे श्री मनोहर पाटील सर यांचे सुद्धा मी आभार मानते. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही सर्व विद्यार्थी, तुम्हा सर्वांचा सहभाग यात लाभला आणि त्यामुळेच हे सेशन आपलं सक्सेस झालेलं आहे. म्हणून तुम्हा सर्वांचे मी आभार मानते आणि हे सेशन संपवते असं मी जाहीर करते. थँक्यू सर. Thank you. Okay. Thank you.